زمانے کی قسم بے شک بھی یقین انسان سراسر گھاٹے میں ہیں، نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ مختصر سا سورہ ہم کو زندگی کیا کہ جس کے سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو یہ 4 چیزیں تمہارے لیے لازم ہیں۔ اہل قلم کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو بیدار کرتا ہے، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بیدار کرتا ہے، تو ان 4 چیزوں پر توجہ دیجیے کہ ایک کہ لوگوں کو ایک حقیقت بتائیے، کیسا ہو اس کو واضح کیجیے، اور تیسرا صرف اپنا مت دیکھیے۔ یہ زیادہ جواب دہی کے مستحق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خصوصی صلاحیت سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال کیجیے۔ اور آج ایسے ہی افراد کا مجموعہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے حق پہنچانا کرنا پڑے، پر آپ صبر کرتے رہیے اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے، میں محترم انتظار نعیم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی مہاراشٹر جناب رضوان الرحمان خان صاحب کا، مہمان اعزازی جناب ہاشمی سید شعیب، اس میقات رواں میں ادارہ ادب اسلامی کے سیکرٹری کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ نئی کندھوں پر، لیکن یہاں تو ظاہراً بھی نئی کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توسیع کرے۔ ادارہ ادب اسلامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ادارہ ادب اسلامی جن خطوط پہ کام کر رہا ہے، تعمیری سوچ کو پروان چڑھانا اور نوجوان شعراء و ادباء کی تربیت کرنے کے سلسلے میں بہت ساری کوششیں ادارہ ادب اسلامی مہاراشٹر کر رہا ہے۔ ادارہ ادب اسلامی مہاراشٹر کا ایک آن لائن گروپ بھی ہے، اس پر مختلف قسم کی سرگرمیاں بڑی پابندی سے اور منصوبہ بندی کے ذریعے جتنی سرگرمیاں آن لائن طریقے سے ہو رہی ہے ان کو PDF کی شکل میں ڈالنے کی بھی ہمارا عزم ہے۔ انشاءاللہ ان کو بھی باقاعدگی سے نوٹ کیا جا رہا ہے اور اسی وقت تمام سرگرمیوں کو ایک کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا جاتا ہے۔ یہاں موجود ہے، بس یہی اپنی بات کو مختصراً کرتے ہوئے ان میں سب سے ان کا تعارف میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں۔ ادارہ ادب اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے امسال حفیظ نگار نقاد و محقق ہیں۔ شاعری کی مختلف قدیم و جدید اصناف میں ان کے 2 درجن شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ادبی رسالہ اسباب کے مدیر ہیں جو پچھلے 41 برسوں سے پونا سے شائع ہو رہا ہے۔ ادب اطفال کے میدان میں بھی انہوں نے قابل ستائش کام کیا ہے۔ شعری میدان میں موصوف کے نمایاں ادبی کارناموں کے اعتراف میں آج سالانہ ادبی کانفرنس کے موقع پر ان کی خدمت میں حفیظ ملکی اعزاز اور سپاسنامہ پیش کیا جاتا ہے۔ صاحب اعزاز اور ان کی ادبی خدمات کا اجمالی تعارف: نام نذیر ابراہیم جوڑ، تاریخ پیدائش و مقام پیدائش 1 دسمبر 1946، فتح پور شیخا واٹی، ضلع سیکر، راجستھان۔ رسمی تعلیم درجہ پنجم۔ مصروفیات و مشاغل: ادبی رسالہ اسباب کی ادارت، شاعری، ناول نگاری، افسانہ نگاری، تنقید و تحقیق، ترتیب و تعلیف، ادارہ اسباب کی جانب سے انعامات و اعزازات: مختلف ریاستوں کے سرکاری و غیر سرکاری اداروں کی جانب سے 50 سے زائد انعامات و اعزازات حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں سے خاص طور سے قابل ذکر اعزازات یہ ہیں: غالب ایوارڈ غالب کلچرل سوسائٹی بنگلور، میر بٹی میر ایوارڈ آل انڈیا میر اکیڈمی لکھنؤ، قاضی عبدالودود ایوارڈ برائے تحقیق بہار
बाल साहित्य अवार्ड साहित्य अकादमी दिल्ली। ड्यूलिप की एजाजी को डिक्स इंस्टीट्यूट हॉलैंड ने 2008 में और अमेरिकन स्कॉलिस्ट इंस्टीट्यूट ने 2009 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर एजाजी डिग्रियों से नवाजा है। मजीद एतराफ नज़ीर फतेहपुरी की अदबी खिदमत और उनके फिक्र फन पर लगभग 22 किताबें शाये की करते हुए अपने खसूसी शुमारे और कोशिश शाये किए हैं। राजस्थान की बात दरसी किताबों में आपकी नज़में शामिल हैं। इदारा दुआ करता है कि अल्लाह ताला डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी की उम्र में बरकत और सेहत में सलामती अता फरमाए और वो इसी तरह ज़बान और अदब की खिदमत करते रहे। मैं मोहतरम इंतजार नईम साहब अवार्ड और अल्लाह याफ्तान के खिदमत में पेश की जाए। डॉक्टर अजीम राही साहब इदारे अदब इस्लामी हिंद हल्का महाराष्ट्र ने इंसान डॉक्टर असमत जावेद एजाज बसिलसिला नसरी खिदमत के लिए मारूफ का शुमार हिंदुस्तान के मारूफ उर्दू में अफसानचा निगाही की रिवायत पर तहकीकी मकाला लिखा है जो शाया हो चुका है। उर्दू अफसानचे पर मौसूफ के इस तहकीकी कारनामे की उर्दू दुनिया में बड़ी पजीराई भी है। उर्दू अफसानचे के इस्तेहकाम और फ़रोग़ में मौसूफ की खिदमत लायक सताइश हैं। नसरी मैदान में डॉक्टर और सिपासनामा पेश किया जाता है। साहिब एजाज़ और उनकी अदबी खिदमत का इजमाली तारुफ। नाम मोहम्मद असरूफियत मौज़फ़ जूनियर इंजीनियर महकमाए मवासिलात और अंडोला। तसानीफ अगली सदी के मोड़ पर अपने दायरे का आदमी चेहरा चेहरा आदमी अफसानों के मजमूए फूल के आंसू के इनामात व एजाज़ात। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी की जानिब से अफसानों के मजमूए अगली सदी के मोड़ पर वो पहला इनाम। गालिब पूना की जानिब से असबाब अवार्ड। सीमाई तकमील भिवंडी की जानिब से मुश्ताक मोमिन फिक्शन अवार्ड। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मालेगांव की जानिब से वफार अदब अवार्ड। इंटरनेशनल अफसानचा फाउंडेशन ऑफ इंडिया मालेगांव की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अपने दायरे का आदमी को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी की जानिब से इनामात। मजीद एतराफ श्री यूनिवर्सिटी में उन पर एमफिल के लिए तहकीकी मकाले लिखे गए हैं। मौसूफ की अदमी खिदमत का एतराफ़ करते हुए सीमाई तकमील भिवंडी और शायद मुंबई ने खुसूसी और सेहत में सलामती अता फरमाए और वो इसी तरह ज़बान और अदब की खिदमत करते रहे। मैं मोहतरम रिजवानुर इस तरह देखिए अजीम साहब इधर देखिए। अल्लाह अकबर। तीसरा हमारा सेगमेंट इस इजलास का वो है एक किताब का इजरा जो हमेशा इदारे की सालाना कॉन्फ्रेंस में होता ही है। तो इसके लिए इस बार जनाब अनस नबील खान साहब की किताब सरमाया जहानी का इजरा तय पाया है। मौसूफ बड़ी अच्छी गज़ल कहते हैं, साथ ही नात गोई में आपको एक खासा हासिल है। आपने जो है तो अहसानुल क़सस नाम भी शाया होने की मुंतज़िर है और इस किताब को इदारा अदब इस्लामी महाराष्ट्र ने शाया किया है। मैं किताब का इजरा फरमाया। अनस नबील साहब बुलाइए आइए उनको लीजिए उनको आगे दो आगे दो। आपका फोटो हो गया तो हाथ नीचे कर लीजिए। फोटो होने के बाद हाथ नीचे कर लीजिए। अल्लाह अकबर।
अल्लाहु अकबर। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो भाई। बहुत मुबारक। इदारे की जानिब से ये 500 कापीज छापी गई हैं और 100 कापीज जो है तो अनस नबी साहब फाउंडर पे रखी जाएगी वहाँ, तो इंशाल्लाह उनसे गुजारिश है कि वो किताब खरीद। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं तमाम एसी चलेंगे अभी थोड़ी देर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गए हैं। जनाब सदर इंतजार मेरे साथ और स्टेज पर बैठे हुए, मेरे सामने बैठे हुए तमाम अदब के चांद सितारे, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म जो है छोटा ही होता है, इतना बड़ा इदारे की जानिब से मिला, उसके लिए मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला को इजाज़त हो। ये बिला तकल्लुफ़ है जी हाँ। तो मैं कहता हूँ कि सदर आली हाज़रीन इमाम आपकी खिदमत में हाजिर है सलाम। थोड़ा निकला है जो मेरे नाम ये रब की जानिब से मिला इनाम ये। क्या बताऊँ क्या जो है ये इनाम, सरफराजी का सबब है ये इनाम। मुतमईन हूँ आज इस एजाज़ पर, मुतमईन हूँ आज इस एजाज़ पर, रक्स में है दिल खुशी के सांस पर, रक्स में है दिल खुशी के सांस पर। है जबीने शौक में सजदे हज़ार, है जबीने शौक में सजदे हज़ार, सरनिगू होने को दिल है बेकरार। देखिए कि मुर्गे बिस्मिल को सुकूने दिल मिला, मुर्गे बिस्मिल को सुकूने दिल मिला, डूबती कश्ती को एक साहिल मिला, डूबती कश्ती को एक साहिल मिला। खुश्क मौसम में बहारें आ गई, खुश्क मौसम में बहारें आ गई, रहमतें की घटाएं छा गई। कैसा बख्शा है मुकद्दर ने मकाम, कैसा बख्शा है मुकद्दर ने मकाम, चारों जानिब है खुशी का सलाम। और ये शेर बतौर ख़ास के ये अलामत और उस पर यह इनाम जिसना लब तक आ गया है खुद ही जान। ये अलामत और उस पर ये इनाम जिसना लब तक आ गया है खुद ही जान। मैं कशो आओ चलो मिलकर पिए, मैं कशो आओ चलो मिलकर पिए, कोसरो तस्नीम की बातें करें। मैं कशो आओ चलो मिलकर पिए, कोसरो तस्नीम की बातें करें। चाँद सूरज के हवाले एक तरफ, चाँद सूरज के हवाले एक तरफ, इल्म फन के ये उजाले एक तरफ। किसने छेड़ा नगमा हाय सरमदी, किसने छेड़ा किसने छेड़ा नगमा हाय सरमदी, रक्स में है आज रूहे जिंदगी। किसने छेड़ा नगमा हाय सरमदी, रक्स में है आज रूहे जिंदगी। तितलियों का रक्स रंगों का हुजूम, तितलियों का रक्स रंगों का हुजूम, हर तरफ है बाग में खुशबू की धूम। और शुक्र उसका जिसने बख्शी ये खुशी, शुक्र उसका जिसने बख्शी ये खुशी, आज आई है मसरत की घड़ी। और ये आखिरी शेर के है दुआ ये कारवां चलता रहे, है दुआ ये कारवां चलता रहे, और चरागे आरज़ू जनाब डॉक्टर अजीम भाई साहब, इनसे भी इल्तिमास है कि वो मुख्तसरन अपना इज़हार ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।
मोहतरम सदर महफिल इंतज़ार नईम साहब और तमाम यहाँ तशरीफ़ फरमा अहले ज़ौक़ इल्म अहले इल्म हज़रात, नज़ीर साहब ने तो मंजूम अपने तासुरात का इज़हार किया। मैं जो है क्योंकि आपको सुनाना है मुख्तसर की जो है हुक्म हुआ, इसलिए मैं लिख कर भी नहीं लाया कुछ। बहरहाल तारुफ में जैसा कि बताया गया कि मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी अंजुमनों की जानिब से मेरा जमात इस्लामी हिंद के जो हल्का इदारा अदब इस्लामी की जानिब से मुझे इस एज़ाज़ का मुस्तहिक़ करार दिया गया, ये नाम मुझे तफ़वीज़ किया गया। मैं अल्लाह ताला के बेइंतहा पहले शुक्र भेजता हूँ और उसके बाद आप तमाम ज़िम्मेदारान का और मेरे तमाम अदबी अहबाब का, बुज़ुर्ग दोस्तों का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। मैं बता दूँ कि इस इनाम की मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इनामात जैसा कि मुश्ताक मोमिन अवार्ड और क्रिश्चियन अदबी अवार्ड है, मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जिस तरह का जो है एजाज़ किया गया है वो मेरे लिए बात से फ़ख्र है, बात से खुशी है, बात से मुसर्रत है। इसके साथ ही बता दूँ कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है इसकी मुझे दोहरी खुशी है कि जिनके नाम से मौसूम है डॉक्टर इस्मत जावेद शेख, वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे और मेरे पड़ोसी भी थे, तो उनसे आज उनके नाम का अवार्ड इस तरह से बहुत बड़े मौक़िफ़ नाक़िद शायर अदीब थे, वो उनका शेरी मजमू अकेला दरख्त शायर हुआ था, तो एक तरह उनकी खिदमत का एतराफ़ उनके नाम से मंसूब करके किया गया और उसके साथ ही अदब के करना से इस तालिब इल्म को जो कि उनका भी तालिब इल्म था उसका एजाज़ किया गया, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। इस्मत जावेद शेख साहब ने जो है मुझे आने के बाद 1980 के बाद इस तरह मेरे पड़ोसी बन गए, कावल था मकान था, बाद में वाली कॉलोनी में मुंतकिल हो गए थे बहरहाल। और दूसरी खुशी ये है मुझे इस्मत जावेद साहब के ताल्लुक़ से कि मेरी पहली किताब फूल के आंसू, जो कि उस ज़माने में अफसाने को मिनी अफसाना कहा जाता था, मिनी अफसानों का पहला मजमूआ था, तो एक तो ऐसी सिंफ जिसे बाकायदा जो है कबूलियत नहीं बख्शी गई थी, कबूलियत नहीं मिली थी, और मैं खुद भी नौ में सलाहकार आज भी हूँ, ऐसा ही तालिब इल्म हूँ, तो बहरहाल उन्होंने उस किताब का मुकदमा लिखा था। और खास बात यह है कि जैसा कि बताया गया कि अफसाने में मेरा काम है, तो कई लोगों ने उस मुकदमे से मिनी अफसाने के ताल्लुक़ से हवाले दिए जो आज तक दिए जा रहे हैं। तो इसमें जावेद साहब मेरे उस्ताद थे, मेरे बहुत अच्छे करम फरमा बुजुर्ग दोस्त रहे, पड़ोसी रहे, मेरी किताब का मुकदमा लिखा। इस लिहाज से भी ताकि इसमें दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे आगे लिखने पढ़ने के मामले में इस्तिक़ामत अता फरमाए, मेरे मुस्तक़बिल को मज़ीद रोशन करे और मैं इसी तरह तख्लीक़ी काम करते रहूँ और तख्लीक़ी काम के साथ दीन के मुस्बत साले अफ़कार को अपने तख्लीक़ी अदब में पेश कर सकूँ। काज़ी शख्स जनाब अनस नबील साहब, उनसे गुजारिश है कि वो भी मुख्तसरन इस मौके से इशारा करें। मोहतरम सदर मजलिस इस्लामी साहब, अमीर अहकार रहमान साहब, ब्रदर मुफ्ती हाशमी साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम साहब और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हाज़रीन, मैं समझता हूँ कि एक फनकार की जो अदबी ज़िंदगी है उसमें उसकी पहली इशाअत की खुशी का लम्हा बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे एक जोड़े की ज़िंदगी में उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में पहले बच्चे की विलादत की खुशी। तो मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले और बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कम उम्र में ये इज़्ज़त हासिल किया। वरना बहुत सारे फनकार ऐसे होते हैं जो कि उनकी आखिरी हद को पहुँचने के बाद ये खुशी उनको मिल पाती है। बेशक। तो अल्लाह ताला का मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही इदारे के तमाम ज़िम्मेदारान, खासतौर पर इदारे के सदर मोहतरम प्रोफेसर मकबूल अहमद साहब, सेक्रेटरी गुलाम फरीद साहब, इब्राहिम शौक साहब, मरकज़ी ज़िम्मेदार इंतज़ार नईम साहब, गाजी साहब, हसन आकिब साहब, तमाम ज़िम्मेदारान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, उनको मशकूर हूँ। इस किताब की इशाअत की खुशी मेरे लिए यही है कि मेरे वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं और इससे बढ़कर मेरे एजाज़ की बात और कुछ नहीं हो सकती। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब थी लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका हाथ जो टूटा हुआ है ज़ाहिर रखे। और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मेरे वालिद साहब की मौजूदगी में मेरी किताब का इजरा हुआ। और कुछ लोगों का जिक्र मैं ख़ास तौर पर करना चाहूँगा जिनकी बहुत
का जिक्र ना किया जाए तो थोड़ा सा गलती होगी। ख़ास तौर पर जो है आज यहाँ पर मौजूद नहीं, मैं चाह रहा था कि मेरी किताब के मुरत्तिब मोहतरम समीउर रहमान साहब, जिन्होंने बड़ी कोशिश बड़ी मेहनत के साथ इस किताब को तरतीब दिया, टाइपिंग कंपोजिंग तमाम बगैर किसी उजरत के बगैर किसी मुआवजे की, लेकिन वो आज इस महफिल में किसी वजह से शरीक नहीं हो सके, उनका मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार हैं सैयद मुनव्वर हुसैन भाई, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से मुनव्वर साहब ने इस काम को, और मैं आप तमाम का भी मशहूर हूँ कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेहमान एजाज़ी जनाब हाशमी सैयद शोएब साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन इज़हार करें। मैं मौसम से गुजारिश करता हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब सदर इजाज़ नईम साहब, अमीर वफ़ाक़ निज़ामुर रहमान साहब, अवार्ड इफ्तारान नज़ीर फतेहपुरी साहब, अज़ीम राही साहब, अनस नबी और डॉक्टर मकबूल अहमद महमूद साहब और हाज़िरीन मुस्लिम। असल में मैं स्टेज का आदमी हूँ नहीं, तकरीर वगैरह से बहुत दूर रहता हूँ। उस्ताद मोहतरम जिन्होंने मुझे ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ाया है, डॉक्टर मकबूल अहमद महमूद साहब, उनकी मौजूदगी में मुझे मदद किया गया है। मेरे साथ की बात है, खुशी की बात। कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है वो काफ़ी दिलचस्प है, कोरोना और उर्दू अदब। तो इस ताल्लुक से महाराष्ट्र उर्दू गिल्ड में भी काफ़ी काम किया है। हमने लॉकडाउन में ऐसे हालात हो गए थे कि रोज़ाना कोई ना कोई अदीब के मरने की खबर आती है, और उसमें महाराष्ट्र के बहुत सारे उदबा और शोरा जो है हमें छोटी ऑनलाइन ताज़ाती नशिस्त की मुनक़िद की थी अकेडमी की जानिब से। इसके साथ ही जितने उदबा और शोरा महाराष्ट्र के जो गुजर गए उन्हें खराज पेश करने के लिए और उनकी अपनी खिदमात को मंजर आम पर लाने के लिए हमने तो उर्दू अकेडमी का रिसाला निकलता है सेवाई इम्कान, तो हमने खुसूसी शुमारा जो उस पर निकाला है, तो बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाला। काफ़ी काबिल क़द्र उनकी खिदमात हैं और अकेडमी की जानिब से ही मैं मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू अकेडमी की जानिब से भी बहुत सारी स्कीमें हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो उदबा और शोरा हैं तो वो भी अकेडमी की स्कीम्स से फ़ायदा उठाएँ। ख़ास और किताबों पर इनाम, ये दो ऐसी स्कीम हैं जिस पर क्या कहेंगे अखलाकी अदब पर बहुत कम लिखा जाता है। अकेडमी में जो किताबें और मसवदे आते हैं उनमें ज़्यादातर शायरी होती है, और दूसरा तहक़ीक़ और तनक़ीद। तहक़ीक़ और तनक़ीद का मामला ऐसा है कि जो जजेस से हमारी बातचीत होती है, जो आते हैं चेक करने के, वो बोलते हैं कि ज़्यादातर इसमें सब कॉपी पेस्ट वाला मामला होता है, और अखलाकी अदब पर बहुत कम लिखा जाता है। बच्चों के अदब पर भी जैसा होना चाहिए उस तरह नहीं लिखा जाता है, और तंज़ो निज़ाम इस पर भी बहुत कम लोग लिखते हैं। तो यहाँ इदारे अरबी इस्लाम से जुड़े हुए जो अफराद हैं निकलें और अच्छे नावल और अच्छा अदब जो है वहाँ से निकले, उसके भी आप ज़हनी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सामने आता नहीं है और फिर वो लोग अप्रोच भी नहीं होते हैं, तो उनको लेकर भी काम करना चाहिए। तो ये जो अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, मैं इसके लिए इदारे अरबी इस्लामी को मुबारकबाद देता हूँ, और आपने मुझे यहाँ मौजूद किया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अमीर हक़ाइक़ महाराष्ट्र जमात इस्लामी इनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख़याल फैला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर महफिल इंतज़ार नईम साहब, मोहतरम सदर इदारा पुरी साहब, अनस नबील साहब, अजीम राही साहब, और ऑफ द स्टेज हम एक बहुत अहम महफिल में जमा है, और मुझे भी इस महफिल में शिरकत पर रब तबारक व तआला का शुक्र बजा रहा हूँ। शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, साथियों, जिस एज में हम रहे और बस रहे हैं उसमें खालिक कायनात ने आप हजरात को ये मौका जो इनायत फरमाया है,
کہ ایک انقلاب کہ جس کا خواب ہم اپنی کھلی آنکھوں سے صبح و شام دیکھتے ہیں، اس انقلاب کے لیے آپ اپنی ادبی کوششوں اور قلمی کاوشوں سے محنت کر سکیں، جدوجہد کر سکیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی جہاد کے یقین اور اسباب کو محسوس کرتے ہوں گے، اور اسی احساس کے ساتھ آپ اپنے کاموں میں لگے بھی ہوں گے، اور اس سے مزید کوشش کر کے اس راہ میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے۔ یہ عظیم کام ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ تحریکی کام ہو یا انقلابی کام ہو، دین کے قیام کا یہ جو کام ہے، اس میں جہاں کارکنانی اور ادبی لحاظ سے افراد رہے جو اس محاذ پر قیام دین کی کوششوں میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کی زندگیوں کو طویل فرمائے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس راہ میں، اس انقلاب کی کوششوں میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج دو بہت ہی محترم شخصیات کی کاوشوں کو سراہا گیا، ریکگنائز کیا گیا، اور بہت سے افراد کاوشوں میں مصروف ہیں اور انہیں بھی ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، جو اصلاً ادارہ نہیں ہے، ادارہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے، انہیں ہونا چاہیے کہ عبرت کے لیے اور ٹیکنیکل نام ہم نے دیا ہے، اصل میں یہ تحریک ہے اور اسی انداز سے اسے چلنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تحریک ادب اسلامی کے اپنے لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشنز کے پیش نظر آج ہم دو ہی ہمارے معزز شخصیات کی کاوشوں کو یہاں محسوس کر سکیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے ادارے کے اور تحریک کے ذمہ داران اس سلسلے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی کاوشوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ہم سے ان کی قربت میں اضافہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نیا رخ مل سکے، نیا رخ ہماری ہماری انقلابی رخ۔ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جدیدیت پسند بھی ہیں، ترقی پسند بھی ہیں، اور نظم العین کا ویسا احساس نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی ادارے اور تحریک کے افراد جو ہے وہ اپنے دائرۂ اثر کو اور مزید بڑھائیں۔ میرا مقام نہیں ہے کہ میں اس قسم کی کچھ ہدایتیں کر سکوں، لیکن یہ میری گزارش ہے، میرا التماس ہے کہ آپ اس سلسلے میں ضرور کوشش کریں۔ ادارے کی کوششوں میں، اس کی سرگرمیوں میں، اس کی آن لائن ہو یا آف لائن سرگرمی ہو، اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ مزید آپ آئیں، یقینی طور پر آپ لوگوں پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس میں ہم ویسا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اثرات ہم جو مرتب ہونا چاہیے وہ اثرات ہم مرتب نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب جیسا کچھ مطلب ای لائف ہو گئی ہے، جس طرح سے الیکٹرانکس اور ٹیلی کمیونیکیشن نے اپنے اثرات بڑھائے ہیں، تو لوگوں کا اس قسم کا ذوق بھی کم ہوا ہے، جبکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سیلاب کے مقابلے میں اگر کم باندھنا ہے تو ہمارے ادبا، شعراء، قلمکار، ان لوگوں کو اپنی کاوشوں میں اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ نئی نسل کی اٹھان ہم اس طرح سے کر سکیں کہ جیسا کہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس پہلے اجلاس کے صدارتی خطاب کے لیے میں محترم جناب انتظار نعیم صاحب دہلی ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور صدارتی خطبہ پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما جناب وزیر فتح پوری صاحب، جناب الرحمان خان صاحب، جناب عظیم رائی صاحب، محترم صاحب، اسلامی مہاراشٹر کے صدر پروفیسر محمود احمد مقبول صاحب، علیزم حمید صاحب، اور وکالت اسلامی مہاراشٹر کے سیکرٹری اور دوست غلام، یہ کانفرنس بہت دلچسپ ہے میرے لیے، آپ بھی محظوظ ہوں گے شاید کہ ہمارے دوستوں کو
दिए गए हैं। हफीज मेहदी साहब और जो उनके नाम से अवार्ड यहाँ नज़ीर सदर साहब को पेश किया गया, वो मेरे बहुत मोहतरम दोस्त कह रहा हूँ, सीनियर दोस्त, और एक तवील अरसे तक हमने उनके साथ रहकर इदारे इस्लाम की उनकी खिदमत अंजाम दी। मुल्क भी, बैरून मुल्क भी बहुत से सफर में उनका साथ रहा, और यहाँ तक कि उनकी तदफीन में भी शिरकत का मौका मिला। बहुत याद आते हैं वो, बहुत अहम शख्सियत उर्दू अदब की। हिंदुस्तान में उर्दू शेर अदब के हवाले से जब भी गुफ्तगू होगी तो हफीज मेहदी साहब के बगैर जावेद, शायद हमारे दोस्तों को कोई बात नहीं मालूम होगी कि मालूम से भी खलासा का ताल्लुक, जब वो बॉम्बे में इस्माइल सिख कॉलेज में प्रोफेसर थे, ताल्लुक रहा। बहुत अजीम शख्सियत होगी उर्दू अदब की, बहुत ख़ास पहलुओं से उन्होंने उर्दू अदब की खिदमत अंजाम। मोहतरम अजीम राही साहब और फिर हमारे मोहतरम दोस्त सैफुद्दीन साहब, इन दोनों से एक कभी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक है। मुझे दोहरी खुशी हो रही है, जिस नामों से अवार्ड दिया गया हम उन्हें याद करते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करते हैं, और जिन दोस्तों को अवार्ड दिया गया वो इसके मुस्तहिक़ हैं कि उनको इस तरह के अवार्ड मिलते रहें और उनके कामों की पहचाई होती रहे। हमारे नौजवान दोस्त नबील जी, जी, वो ज़बान पर के लिए भी और हम सब के लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि उनका शेर मजमूआ बहुत कम उम्री में शायर हुआ, खुशगवार मौजूदगी के साथ। दोस्तों, आपके लिए मैं इदारे अदब इस्लामी जैसा कि जमात इस्लामी महाराष्ट्र के अमीर बिरादर मोहतरम जनाब कमाल खान साहब ने फरमाया कि ये तो टेक्निकल नाम है एक इदारे का, एक पहचान के लिए तो इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसके दोनों किनारों पर रहने वाले लोग नस्री अदब से भी और नज़्म से भी फैज़याब होते रहें, और एक ख़ास नहिश पर अदब तश्कील पाता रहे और सदर के ज़रिए समाज और उनकी खिदमत अंजाम दी जाती रहे। लेकिन हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, ऐसे अदब के तख्लीक करने वाले भी और ऐसे अदब के पढ़ने वाले भी अफसोस के बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि हम गुजारिश कर सकें, जैसे कि हमारे मोहतरम सेक्रेटरी, जहाँ से हम अच्छे और अखलाकी कानूनी अदब को तलाश कर सकें और उसको समाज के सामने ला सकें। अदब में चाहे वो अफसाना हो, नावल हो या शरियात के मुख्तलिफ पहलू हों, जो काम कर जाते हैं इसका आप सबको अंदाज़ा है। अल्लामा इकबाल के एक शेर, पूरा कलाम तो छोड़िए आप, एक बड़ी चीज़ है, एक शेर के बारे में हम कह सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए काफ़ी हमारे उसके बाद के अफराद, तो हम छोटे मोटे लिखने वाले लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि तो कुछ कहा जाए तो कुछ लिखा जाए, उसमें कोई पैगाम भी हो, सोच भी हो, उदास भी हो, जो भीड़ों को और उससे आगे बढ़कर कोई इनकलाब और इनकलाबी रूप बेदार कर सके। हमारे बहुत से ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने उर्दू अदब में और हिंदी अदब में बड़ा काम किया है। ये उस अदब की तख्लीक में इदारे अदब इस्लामी हिंद का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बाद लोगों ने स्टेज पर इसका एतराफ़ किया और इजहार किया। हम तो इस तहरीक से वाकिफ़ ही हुए
इदारे इस्लामी हिंद के ज़रिए डॉक्टर कौसर अदानी नदवी मरहूम का नाम मुझे याद आ रहा है। उन्होंने एक मौके पर कहा कि मैं तो जमात इस्लामी को जानता भी नहीं था, मैं तो डांडा हैदराबाद में इदारे अदब इस्लामी हिंद की नशिस्तों में शरीक होकर मैं अदब से करीब हुआ। और फिर उन्होंने एक ऐसे मौजू पर बाद में तहकीकी काम किया जो बड़ा छूता है। और मशहूर सूफी शोरा गुजरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी और काम हिंदी में, एक नदवी ने हिंदी में पेश की बड़ी बात। और वो सोर्स का काम देगा आइंदा भी और आज भी दे रहा है। इससे बहुत से अफराद मोहम्मद फारूक खान साहब के बारे में बहुत से आप जानते हैं, वाकिफ हैं। वो जितनी अच्छी उर्दू लिखते हैं उससे एक रत्ती भर भी कम अच्छी हिंदी नहीं लिखते, हिंदी लिखते हैं बहुत शानदार हिंदी। जब हिंदी बोलते हैं तो उनसे आप कहिए कि मौलाना हिंदी मजमा है, आपको हिंदी में गुफ्तगू करनी है, तो फिर क्या मजा है कि उनकी 1 घंटे की तकरीर में कोई उर्दू का लफ्ज आ जाए। तो ये सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर तसनीफ है मालिम फी तारीख अरबी किताब, जिसने बड़ा इनकलाब बर्पा किया आलम अरब में। उसका जो तर्जमा मोहम्मद फारूक खान साहब ने हिंदी में किया है वो देखने के लायक है। जो अजमत और खुद सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की उस किताब में है अरबी में वही बुलंदी उनकी हिंदी किताब में पत्र लिखाएं मशहूर किताब। मर्ज कर रहा था कि इदारे की मुख्तलिफ पहलुओं से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हैं। इस खान साहब को भी इदारे से वाबस्तगी के 50 साल ज़्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 1972 से ही इसी इदारे से ताल्लुक़ का मुझे मौका मिला दिल्ली में। बॉम्बे में तो इदारे से वाक़ियत नहीं थी। मेरी रुझान तो तरक्की पसंद तहरीक के दौर के दरमियान हुई। मुझे फ़ख्र तो हासिल है, फ़ख्र तो क्या कहें, बड़ा ये मौका हासिल रहा कि मैं उनके दरमियान रहा। लेकिन अल्लाह का ये बहुत करम और एहसान का शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी एक लम्हे के लिए भी उस तहरीक के अफकार में मोहतरम सरदार जाफरी साहब, साहिर गिलानी साहब, कैफी आज़मी साहब, आपके बादशाह औरंगाबाद के, और फिर बॉम्बे के काम बड़े शोरा वदीब ज़माने में बॉम्बे में हुआ करते थे। सबसे टीचर की बरकत है, उसके अफराद के सोबतों की बरकत है कि मुझे उसने इदारा अदब इस्लामी हिंद तक पहुँचाया। फिर टूटी कुछ अदबी खिदमत का मौका भी अदा करना है। उसके पैगाम को चाहे महाराष्ट्र की ज़बान मराठी, अगरचे उर्दू का जादू ऐसा है कि सर चढ़ के बोलता है। जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू नहीं पढ़े हुए हैं, वो बॉम्बे में ट्यूशन रखते हैं उर्दू ज़बान सीखने के लिए, उर्दू पढ़ाया करते थे। और जो लोग उर्दू से कत रखते हैं, जिन्होंने पिछले 70 साल कोशिश की है इस मुल्क में उर्दू को ख़त्म करने की, उनकी मजबूरी ये है कि जब उर्दू बोलते हैं, जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं वो, तो उर्दू शेर व शायरी का ये हवाला उनके काम आता है। बहरहाल ये बड़ी मजबूत ज़बान है, बड़ी जिंदादिल ज़बान है, बड़ी सख्त जान ज़बान है उर्दू। बिल्कुल। और फिर इसकी जो दिलकशी है, इसकी जो रानाई है, इसमें जो हुस्न है, बावजूद कोशिश के लोग उसको ख़त्म नहीं कर पाते। अभी लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ चंद दिन पहले, एक पुराना इंटरव्यू नशर हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझसे लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि अगर तुम्हें इंडस्ट्री में काम करना है तो तुम्हें उर्दू ज़बान सीखनी चाहिए। तो जब मैंने एक उर्दू उस्ताद मुकर्रर किया तो सचिव लाते थे, उन्होंने मुझे उर्दू
सिर्फ उर्दू ज़बान नहीं सिखाई बल्कि तहरीर भी सिखाई, और उन्हीं का लफ्ज़ ये है कि उर्दू तलफ़ुज़ मैंने अपना दुरुस्त किया, तलफ़ुज़ को सही तलफ़ुज़ के साथ पेश किया। उर्दू तलफ़ुज़ भी मैंने उर्दू ज़बान को सीख कर अख्तियार किया। तो दोस्तों, ये तमाम बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं जो उर्दू के साथ वाबस्ता हैं। मुझे याद है कि तकसीम हुई, मुल्क तकसीम हुआ, और एक स्कूल जो लंबे अरसे से एक सिमरा इतने स्कूल जो उर्दू मीडियम हुआ करते थे, रातों रात वो हिंदी मीडियम करके गए। हमें किसी ज़बान से कद नहीं है, तमाम ज़बानों से इश्क है, मोहब्बत है। ये खाकसार हिंदी में ही पोस्ट ग्रेजुएट नाम पर हिंदी से प्रेम के नाम पर उर्दू के साथ जो सलूक किया गया और किया जा रहा है वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल मैंने गुजारिश की आपसे कि उर्दू ज़बान की सब जानी, उसकी दिलकशी, उसका हुस्न, उसकी रानाई। बाज़ पैगामात आते हैं व्हाट्सएप पे कि हमारे समझ में तो नहीं आया शायद ने क्या कहा, लेकिन दिल झुकता है उसके अंदाज पर जो कुछ पेश करता है अपने कलाम के जरिए। तो ये उर्दू ज़बान का दुनिया की एक दो ज़बानें ही और हैं जो उर्दू के साथ नज़री अदब भी कम नहीं है। जितनी किताबें सिर्फ सीरत पर उर्दू में हैं, सीरत पर सिर्फ इतनी किताबें दुनिया की इक्का दुक्का ही ज़बानों में शायद होंगी। और अदीम लिटरेचर है उर्दू में, एक तारीख उर्दू ज़बान की। उर्दू के फ़रोग़ में फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा हम एतराफ़ करते हैं, फरहाद अली के साथ बड़ा रोल है। अगरचे जो जहाँ से सर्टिफिकेट हासिल होते हैं सेंसर बोर्ड, उनकी समझ में आया कि ये हम जिस फिल्म को हम हिंदी उर्दू सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस फिल्म में कोई लफ्ज़ हिंदी का नहीं है। उसकी कहानी, उसके डायलॉग्स, उसके गीत, उसके गाने, उसके नगमे सब उर्दू के तो हैं, और जिन लोगों ने इसे तैयार किया है वो सब के सब उर्दू दान लोग हैं। लेकिन बुरा हो तासुब का, लेकिन बहरहाल उनके फ़रोग़ के लिए बड़ा काम किया। बाकी जो उसकी कमजोरियाँ हैं, जो खामियाँ हैं फिल्म की, बतौर ख़ास आज की फिल्म की से महफूज रखे हमें और हमारी मिलत को, आम इंसानों को भी। मदारिस मकातिब का बड़ा रोल है उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में। जब हुकूमतों ने उर्दू ज़बान को ख़त्म किया तो हमारे मदारिस मकातिब ने बड़ी खामोशी के साथ इस ज़बान को ज़िंदा रखा वाक़ई, और ये बड़ा काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए। फिर हमारे अफसाने ने, हमारे नावल्स, उन्होंने फिर शोरा का एक अजीम सिलसिला तक़सीम से पहले भी सैकड़ों साल से और तक़सीम हिंद के बाद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है शोरा उर्दू का, जिन्होंने इस ज़बान को कायम रखा है, बाकी रखा है, उसको फ़रोग़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके फ़रोग़ में आज भी बड़ा हिस्सा अदा कर रहे हैं। हुकूमत को कुछ ख्याल आया, हमने बड़ी ज़्यादती कर ली उर्दू ज़बान के साथ, चलिए कुछ खैरात दे देते हैं और भी थोड़ा बहुत काम बना उन्हें अकेडमी के ज़रिए उर्दू की फ़रोग़ का, उसके तहफ़्फ़ुज़ का हो रहा है। इसमें बाज़ अकेडमियाँ काबिल ज़िक्र काम है उनका। मेरे ख्याल में शायद दिल्ली उर्दू एक और जिनकी ज़िंदगियाँ इस्लाम, मुसलमान और उर्दू की मुखालफत में गुजरी, ऐसे लोगों को लाके उसका ज़िम्मेदार बनाया जाता है। खुद तमाशे हैं, कुछ काम वहाँ से भी हो रहा है। बतौर मजमूई ये सारी चीज़ें इंफरादी तौर पर अफराद है अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत इस मुल्क में उसने अंजाम दी है और दे रही। किताबें उसके मकतबे ने सिर्फ उर्दू में शाये की हैं, 400 से ज़्यादा किताबें बड़े हसीन अंदाज में पेश किया।
और वो सीरत पर एक बेहतरीन चीज़ हो गई है जो आप कहीं भी पेश कर सकते हैं। कलाम भी शानदार और आवाज़ भी बहुत ही दिलकश। तो ये एक राब्ता दोनों ज़ुबानों के अदीबों का, शायरों का जो फासले हैं, फासले पैदा किए जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी कश्मीर फाइल्स के नाम से। तो ये सारी फाइलें आपका सारे अदब रद्द कर सकता है, इनसे मोहब्बत की या खुशबुएं फूट सकती हैं। ये काम हमें करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमको उसकी तौफीक अता फरमाए। मैं अपने दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खूबसूरत महफिल आपने सजाई और हमारे अमीर अलका जनाब रहमान खान साहब की सरपरस्ती आपको हासिल है, यहाँ भी हासिल रही आपको, ये बड़ी खुशी की बात है। वाक़ई दवाना मेरे मैं नाम याफ्तगान को अवार्ड याफ्तगान को फिर आखिर में मुबारकबाद एक बार और पेश करता हूँ। अवार्ड बहुत छोटा सा है, लेकिन हमारे दोस्तों की जज्बे को आप देखिए, उसे कबूल कीजिए। आखिर में मैं इज़हार तशक्कुर के लिए इदारा इस्लामी महाराष्ट्र के सदर जनाब डॉक्टर मकबूल अहमद मकबूल साहब से गुजारिश करूँगा। इदारा इस्लामी आप सब जमा हैं इस कॉन्फ्रेंस में 2 अवार्ड दिए गए। पिछले 2 साल से इसकी सरगर्मियाँ बंद थीं कोविड की वजह से, और ये कॉन्फ्रेंस हमेशा 3 दिन या 2 दिन की होती है, से रोज़ा या कम से कम 2 रोज़ा होती है और बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन इस साल हंगामी हालात में, क्योंकि इस साल भी ऐसे होने के इम्कान माहौल नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर फ़ौरन हमने जो है इसका इरादा किया और एक दिन की सही इस तरह से हमने उजलत में तय किया। तो बहरहाल हमारे एक मीटिंग में जो है इत्तेफाक आरा से जो है 2 साहिबीन का नाम चुना गया तमाम का इत्तेफाक राय से, और हमारी इस खीर सी पेशकश को जनाब नज़ीर फताहपुरी साहब ने और जनाब अजीम आली साहब ने कबूल किया। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि इंतज़ाम नईम साहब ने कहा कि एक छोटी सी हकीर सी अवार्ड है, लेकिन अवार्ड अफगान के जो जज्बात का और उनके एहसासात का हमने सुना, उससे अंदाज़ा होता है कि इसकी क्या कदर कीमत है। तो बहरहाल हमारे इस अवार्ड को आप दोनों साहिबीन ने कबूल किया और जो है अवार्ड हासिल करने के लिए बनासर नफसी तशरीफ लाए। हालांकि नज़ीर फताहपुरी साहब की तबीयत आज़ाद रहती है, सफ़र नहीं होता, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस अवार्ड इस इदारे की मोहब्बत कशिश यहाँ की लाई, तो मैं उनकी खिदमत में शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए हमने जनाब इंतज़ाम नईम साहब को रहमत दी, जो दिल्ली से तशरीफ लाए। वो भी पिछले 50 वर्षों से इदारे से जमात से वाबस्ता हैं, काफ़ी नामी गिरामी नज़्म नस्र में काफ़ी नाम है, काम है उनका। तो हमारी दावत पर जो है वो तशरीफ लाए, उनकी खिदमत में भी बतौर ख़ास हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। हमारे सरपरस्त अमीर रियासत रिजवान रहमान खान साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, वो भी तशरीफ लाए। हमारे दावत पर हालांकि बहुत मसरूफ रहते हैं, वो भी हमारी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाकर कॉन्फ्रेंस को रौनक बख्शा। उसके लिए मैं आपकी खिदमत गिरामी में भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अजीज़ दोस्त जनाब सैयद शुएब हाशिमी साहब जो महाराष्ट्र अकेडमी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अनस नबी साहब के वालिद मोहतरम हमारी इस महफिल में मौजूद है। मैं असलम गाजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में शाल पेश करके उन्हें मुबारकबाद पेश करें। एक बहुत मुबारक हो किताब की इसके बाद दूसरा सेशन